میں بڑا آج خوش ہو رہا ہوں جی، آپ ایک پڑھا لکھا بندہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ 9 اقسام ہیں جی آرتھوپیڈکس کی، ہر ایک قسم اللہ کے فضل سے یہاں ہو رہی ہے۔ تو میرے 9 بچے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ باہر سے ٹریننگ لے کے پھر یہاں کام کر رہے ہیں۔ میرا نیا MRI لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ پاکستان میں، اس طرح کا ابھی تک کوئی نہیں ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے۔ $4 ملین کی مشین 500 مریض فری میں ٹریٹ کر چکی ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسانی جانوں کا علاج کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ اس چیز میں ید طولہ حاصل کر لے، ماڈریشن میں نہیں ہے۔ اس وقت ہم لوگ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم، ٹھیک ٹھاک بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا سفر شروع کب ہوا گھرکی ہاسپٹل کے ساتھ؟ میں جی 1987 میں برطانیہ سے تربیت لے کے واپس آیا۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے شیخ زائد ہسپتال میں وفاقی حکومت کی پہلے نوکری شروع کی، 2 سال وہاں رہا اسسٹنٹ پروفیسر۔ پھر پنجاب حکومت میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آ گیا۔ پھر میں جنرل ہسپتال، سروسز ہسپتال وغیرہ کام کیا میں نے۔ 14 سال کام کرنے کے بعد میں پروفیسر بن چکا تھا، سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا میں پنجاب کا۔ تو میں نے 2002 میں 46 سال کی عمر میں پروفیسری سے استعفیٰ دے دیا۔ ورلڈ کپ جب ہم جیتے تھے تو کرکٹ کا میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا، تب مجھے جی یہاں سے آفر ملی اور میں یہاں آ گیا، اور آپ سوچ نہیں سکتے اللہ پاک نے کتنا یہاں کام لے لیا۔ اب وہی لوگ، جب میں نے استعفیٰ دیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ لوگ تو میٹر ہوتے ہیں، یہ کلو میٹر ہے۔ اب وہی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین فیصلہ تھا تمہارا۔ اور ہم نے اب تک جی 200 بچے آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ، ہم صرف FCPS کراتے ہیں جی۔ یقین کریں میرے بچے، اتنا مجھے ان پہ مان ہے کہ اتنا شاندار کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ اسکردو گلگت میں نئے جوڑ ڈل رہے ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں لوگ، کمر ٹوٹتی ہے، ان کو سنگل ڈالے میں ڈال کے اسلام آباد لایا جاتا تھا جی، اور جو 2-4 ایکڑ تھی وہ بھی بک جاتی تھی۔ اب وہیں ان کے گھروں میں آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے جی۔ اچھا، اس میں صرف پاکستان کے ہیں کہ کوئی فورن ڈاکٹرز بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ واحد آرتھوپیڈک سینٹر ہے ملک کا جس میں 12 ممالک سے لوگ آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور سال میں کئی ممالک کے لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس نائجیریا کا بچہ ہے، ہمارے پاس گھانا سے بچہ آ رہا ہے، آئرلینڈ سے، مڈل ایسٹ سے، ویسٹ انڈیز سے لوگ آ کے ٹریننگ، نیپال سے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں جی، الحمدللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی محمد صاحب، جو کہ نائجیریا سے جن کا تعلق ہے، اور وہ یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں گھرکی ہاسپٹل میں، تو ان سے تھوڑا گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی محمد صاحب، ہاؤ آر یو؟ I'm good. So my first question, why you are in Ghurki? Why you selected Ghurki? The name, it actually portrays in Nigeria because I had initial spine surgeons from Nigeria that came here to train, and we saw what they were doing. They were doing very well, and they spoke beautifully about the training here. So I decided to come here and experience it firsthand. And alhamdulillah, I've really experienced the good side of this hospital. There are lots of very good trainers here. They are very welcoming, and they are always ready to put you through. So, and the whole environment makes you feel at home, relaxed, and you learn a lot. And who is your role model here? The boss himself. There are 4-5 bosses. No, the boss. So all bosses are your role model. They are my role. I get a lot of from everybody. I get. So you like Pakistani food? Alhamdulillah. Which one is the best one? Roti. Roti. Thank you very much You're for it. welcome, sir. گھرکی کے اندر انڈر ون روف کتنی ٹائپ آف سرجریز ہو رہی ہیں اس وقت؟ میں بڑا آج خوش ہو رہا ہوں جی، آپ ایک پڑھا لکھا بندہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ 9 اقسام ہیں جی آرتھوپیڈکس کی،
हर एक किस्म अल्लाह के फजल से यहाँ हो रही है। ठीक। और जो मेरे 9 बच्चे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बाहर से ट्रेनिंग लेके फिर यहाँ काम कर रहे हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा 250 बिस्तर का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, जो दुनिया के सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स में से हैं। 10 और ऑपरेशन थिएटर्स हैं मेरे ऑर्थोपेडिक्स के सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको वेलकम करवाएंगे। आज हमारा ये स्पाइन सेंटर है, पाकिस्तान का फर्स्ट स्पाइन सेंटर है। मस्जिद एरिया जी, ये मस्जिद एरिया इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी भी जो है समटाइम जैसे रमज़ान वगैरह भी आता है तो उसमें लोगों को ऑब्वियसली चेंज करके बाहर जाने में, क्योंकि हम इन्फेक्शन पे बड़ा हमारा फोकस होता है। आगे हमारे जो टोटल थिएटर्स हैं वो सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स के 10 हैं और 10 स्टेट ऑफ द जी ऑर्थोपेडिक्स के 10 थिएटर हैं जो मॉर्निंग में चलते हैं। 10 के 10 थिएटर्स और 10 के 10 थिएटर्स में सर्जरीज होती हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है वो आर्थ्रोस्कोपी नहीं आर्थ्रोस्कोपी डॉक्टर मैनवीन करने लगे हैं। प्रोफेसर अतीकुज़्ज़मान साहब हैं जो इस वक्त हिप की सर्जरी, बच्चों में जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं सर्जरी, हिप टेढ़ी होती हैं, उन बच्चों के लिए ये सर्जरी की जा रही है। और हर थिएटर का हमारा अपना इमेज इंटेंसीफायर है ताकि हम यहाँ पे जब सर्जरी करें तो उसमें अंडर इमेज जो है वो फिर हम प्रोसीड करें। ये हमारी माइक्रोस्कोप है जो मैं आपको बता रही थी बाहर के। हम माइक्रोस्कोप जो सर्जरी स्पाइन की जो सर्जरी है वो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी। और हम इसको माइक्रोस्कोप, बहुत सारे लोगों को ना ये असल में कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए लोग कहते हैं इंसिजन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमारी माइक्रोस्कोप जो है वो फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए सर्जरी करते हैं। इसको हमने कलर कोडिंग की हुई है, ये रेड जोन है। इसके लिए स्पेसिफिक टीम है जो हमारा CSSD डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे जो स्क्रब्ड लोग हैं वो इस एरिया में नहीं आ सकते। बैक डोर है और ये लॉक होती हैं प्रॉपर। जितनी वेस्टेज जो कुछ निकलता है यहाँ से ट्रैवल करके आगे जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। इन्फेक्टेड थिएटर मतलब जो भी कोई केसेस है हमारे इन्फेक्टेड वो हम इस थिएटर में करते हैं। इसकी एंट्रेंस और इसके एग्जिट सब अलग। जी बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी इन्फेक्टेड केस को रिफ्यूज़ नहीं करते, वो भले ही एल्सवेयर ऑपरेटेड हो। मतलब हमारे अपने तो बहुत कम है जो ऐसे हों, लेकिन ये है कि ये वाले जो हैं वो फिर हम यहाँ पे करते हैं। हमारा CSSD डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारी जो ऑटोक्लेव जो सेट्स हैं जो हमारे वॉश होते हैं, यहाँ पे ये उनका सारा कंटामिनेटेड मटेरियल जो मतलब जो भी सेट्स वॉश होने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। मुझे अभी बरतानिया वालों ने, ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने बुलाया हुआ था, हाउ टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पाकिस्तान। उनको जब मैंने घुरकी के बारे में वहाँ बताया और एक ने मुझे कहा कि ये सब कुछ बरतानिया में किसी एक ऑर्थोपेडिक सेंटर में एक छत के नीचे नहीं हो रहा जितना कुछ घुरकी में जितना यहाँ हो रहा है। और लेटेस्ट ये नहीं कि गरीब है तो 40 साल पुराना इलाज कर दें ना। सो अल्लाह के फजल से, और हम जी कॉन्स्टेंटली डेवलप होते जाते हैं, हर नई चीज़ अल्लाह हमें दे देता है। जब हमने शुरू किया तो मुझसे पहले जो लोग यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में थे 2 साल में 34 ऑपरेशन हुए थे। हमने पिछले साल 12,000 ऑपरेशन अल्लाह के फजल से किए हैं। एक साल में 12,000। मेरे थिएटर्स 24 घंटे चलते हैं। मेरे पास 40 एनेस्थीसिया डॉक्टरों की टीम है सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स की जी। और जो बच्चे जो इमरजेंसी आती है जी उसी रात ऑपरेशन होता है। 20 के करीब ऑपरेशंस रात को होते हैं जी और 20 दिन में। और मज़े की बात देखें, हमने कोविड में एक दिन छुट्टी नहीं की। सरकारी अस्पताल तकरीबन बंद हो गए थे और मैंने कहा कि मैं अब बोनस पे ज़िंदा हूँ, मैं रोज़ आऊँगा। हम सुबह आते थे जी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ के शुरू हो जाते थे। अल्लाह ने ऐसा करम किया जी, मेरे 200 की टीम है जी यहाँ, नर्सें, पैरामेडिकल, डिस्पेंसर, किसी एक ने नहीं कहा कि नहीं सर हम नहीं आएंगे, हुकूमत ने इजाज़त दी हुई, सब आते थे। पाकिस्तान की ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने हमें बेस्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री का अवार्ड दे दिया। एक अभी हमने सर आज सुबह आपकी एक एक्सरसाइज देखी कि आप एक थिएटर्स के साथ आपका एक मीटिंग रूम है और एक केस का एक डिस्प्ले आ रहा है। अच्छा, मोस्टली हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना तो ये बड़ी एक एक्सेप्शनल सी, आज पहली दफ़ा मैंने कहीं पे ये कोई चीज़ देखी। हर सुबह ये अल्लाह के फजल करम से जो रात को एमरजेंसी आती हैं और जिनका ऑपरेशन होता है वो सुबह प्रेजेंट होता है। और मेरा सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं अगले दिन ऑपरेशन के बाद वाले एक्सरे देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं सुनूंगा कि जी हमने ये कर नहीं सके, ये नहीं, गलत बात।
इतने थिएटर्स हैं, ज़्यादा काम है तो और खोल लो, ठीक है। सो वो रात की एमरजेंसी डिस्कस होती है, सुबह जो केस लिस्ट पे होने होते हैं वो डिस्कस होते हैं, और उनके प्लान में कोई रद्दोबदल करना हो तो वो करते हैं, और जो गुज़श्ता दिन सुबह हुए होते हैं उनके एक्सरेज डिस्कस होते हैं, और फिर वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लमेटिक केस हो तो वो डिस्कस होता है। हम लोग जी अब तक 157 रिसर्च पेपर्स यहाँ के जर्नल्स में पब्लिश कर चुके हैं, माशाल्लाह। 22 इंटरनेशनल जर्नल्स में कर चुके हैं, और इस वक्त मेरे 7 बच्चे, मैं तो जी प्रोफेसर भी मेरे बच्चे हैं, इस वक्त दुबई गए हुए हैं इंटरनेशनल AO स्पाइन और ट्रॉमा मीटिंग में फैकल्टी के तौर पे और पार्टिसिपेंट्स के तौर पे। वेरी गुड। हमारी दस्तरस्त में ना हो तो हम नकल कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों का तो जवाब ही कोई नहीं है जी। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर नईम अहमद साहब बैठे हुए हैं और थोड़ा सा अब इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर, जब मैंने घुरकी ज्वाइन किया इट वाज इन 2001 ओके। और उस वक्त मैं पहले इधर काम कर रहा था, फिर आमिर साहब ने जैसे ही सर्विसेज हॉस्पिटल से रिज़ाइन किया जी। तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे वो लोगों की खिदमत कर सकें और फ्री ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकें। तो चूँकि वो प्राइवेट सेक्टर में थे तो वो इस तरह की फैसिलिटी तो नहीं थी, तो फिर उन्होंने घुरकी को सिलेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दैट वाज अ गोल्डन डे फॉर द इंस्टीट्यूशन के आमिर साहब ने इसको ज्वाइन किया। और जैसे ही पहले जब मैं इधर बैठ के पेशेंट देखा करता था तो इट वाज ऑन द वेरी अर्ली स्टेज, और हार्डली 8-10 पेशेंट डेली आते थे जिनको हमने सिर्फ OPD बेसिस पे देखना होता था ज़्यादातर, और सर्जरीज कभी कभी हुआ करती थी। लेकिन जब आमिर साहब इधर आए और उन्होंने ज्वाइन किया तो लिटरली वो अपने साथ पेशेंट्स का एक हजूम साथ लेके आए साथ। ओके। और डे 1 से, जिस दिन मुझे अभी भी याद है, जिस दिन आमिर साहब आए जिस दिन, और पहला मेरा OPD था उनके साथ, तो इतना बिज़ी डे था कि हम बहुत थक गए थे शाम तक। और उस वक्त हम देखा करते थे OPD में 125 टोकन दिया करते थे, और पेशेंट जो है ना एक रात पहले इधर आके बिस्तरों पे लाइनें लगा के लेट जाते थे टोकन सुबह लेने के लिए। अजानों का टोकन मिला करता था, तो उस वक्त 125 टोकन दिया करते थे। तो वो 125 पेशेंट्स मैं और आमिर साहब अकेले देखा करते थे, और इस तरह हमने 6 से 8 महीने बिल्कुल अकेले काम किया। और इस वक्त आप देखें, और द पीरियड ऑफ लास्ट 21 ईयर्स 22 ईयर्स, जितनी प्रोग्रेस अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान में की है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो मेरा ख्याल घुरकी का नाम बहुत ऊपर है। पाकिस्तान का ऑर्थोपेडिक की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। जो मेन हमारा वर्कलोड है वो है कोल्ड ऑर्थोपेडिक। कोल्ड ऑर्थोपेडिक का मतलब ऐसी सर्जरीज जो कि अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर्स हैं। अब उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, डिफॉर्मिटी सर्जरी, स्पोर्ट्स सर्जरी, इसमें बहुत सारी अदर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, ये सारे के सारे यूनिट्स डेवलप हैं। तो फिजियोथेरेपी की पूरी लाहौर की सबसे बड़ी टीम हमारे पास है, और हमारा काम तो सिर्फ ऑपरेशन करना और ऑपरेशन से अच्छे रिजल्ट्स लेना, ये सर्जन का काम नहीं होता, ये टीम वर्क होती है। बिल्कुल। आज हमने आपका वो देखा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो उनके बारे में कुछ भी नहीं, उनका वो बिल्कुल वो चल रहा है, 2 वीक्स पहले हुई है, उनको बुला रहे, इवन उन्होंने कहा कि जी जो लोग नहीं आ सकते उनके घरों तक भी ये लोग चले जाते हैं। एग्जैक्टली। इस वक्त मेरे साथ एक यंग डॉक्टर खड़े हैं, डॉक्टर उस्मान साहब, तो इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने घुरकी को क्यों सिलेक्ट किया। तो क्या हाल है उस्मान साहब, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? तो आप कब से हैं घुरकी? मैं 1 साल हो गया घुरकी में काम कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से मैंने कहीं और इस तरह से नहीं देखा है डिवीजन, जिस तरह से फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को इस तरह से यहाँ पर लेके चलते हैं। मतलब पेशेंट्स जो हैं वो कैटेगराइज किए हुए हैं कि न्यूरो के पेशेंट्स न्यूरो में देखे जा रहे हैं, MS के रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड ऑर्थो में देखे जाते हैं, पीड्स बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है, गायनी वुमेंस हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ अलग से ट्रीट किया जाता है उनको। एक और यंग डॉक्टर इफ्रा हमारे साथ हैं, और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने घुरकी की सिलेक्शन क्यों की। तो क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। ज्वाइनिंग देने की यहाँ वजह क्या थी? क्योंकि एक तो यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत अच्छा है, प्लस ये कि ऑर्थोपेडिकली आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा माना जाता है हॉस्पिटल, तो मुझे मेरी स्पेशलिटी ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आगे मास्टर्स जो है वो भी ऑर्थो मैनुअल में स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आपको लगता है कि इस वक्त टाउन में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ इन्हीं की हैं? जी जी, सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। अच्छा सर, आप एक हमारा कौमी सरमाया भी हैं। एक मुझे बड़ी मतलब जो है ना एक कन्फ्यूजन शुरू में भी रही है कि आपने 2002 में गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। उस वक्त लाहौर में और भी कितने हॉस्पिटल्स हैं,
वाई यू चूज़ घुरकी हॉस्पिटल? लाहौर मेडिकल कॉलेज का मैं एक डायरेक्टर था, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र हुई कि यहाँ आके टीच भी करो और काम भी शुरू करो। यहाँ इमरजेंसी नहीं आती थी जी, ये ट्रेनिंग के लिए रिकग्नाइज नहीं था। 9 महीने में अल्लाह के फजल से ये रिकग्नाइज हुआ, और अब आप इमरजेंसी का हाल जाके देखें, रश। इतना काम ऑर्थोपीडिक्स का पूरे मुल्क में नहीं हो रहा है। मेरा नया MRI लग रहा है। माशा। पाकिस्तान में उस तरह का अभी तक कोई नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ओके ओके ओके। अच्छा, मेरे कैंसर के मरीज़ कराची जाते थे साइबर नाइफ के लिए। मैंने कहा यार चलो इलाज मुफ्त हो रहा है, जाना रहना खाना पीना तो मुश्किल है। हमने जी उसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। $4 मिलियन की मशीन 500 मरीज़ फ्री में ट्रीट कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सना महरीन है, जो कि यहाँ के साइबर नाइफ डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये साइबर नाइफ है क्या। तो डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर सना महरीन एंड आई एम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ओवर हियर एट घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल। सो जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। और साइबर नाइफ जो है बेसिकली ये एक मोस्ट एडवांस्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन है, ठीक, जो कि बेसिकली रेडिएशन डिलीवर करती है, हाई डोज रेडिएशन, और विच इज़ यूज टू ट्रीट कैंसरस एज वेल एज नॉन कैंसरस लीजन्स। यानी कि ये कैंसर और जितने भी कैंसर नॉन कैंसरस लीजन्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ओनली 2 मशीन्स आर अवेलेबल ऑल ओवर इन पाकिस्तान। एक कराची में है और एक हमारे पास साइबर नाइफ इस वक्त लेटेस्ट पंजाब में, ऑल ओवर द पंजाब ये एक सिंगल मशीन है घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में। कब से इंस्टॉल है यहाँ पे? सो इट्स इंस्टॉल्ड सिंस 2022 और एंड सिंस 2022 टिल नाउ हमने यहाँ पर 550 प्लस पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विद अ सक्सेस रेशो मोर देन 96%। कितने सेशन चलते हैं एक पेशेंट? नॉर्मली विद द साइबर नाइफ 1 to 5 सेशंस आर रिक्वायर्ड, और ये एक नॉन इन्वेसिव तरीका है, पेनलेस तरीका है। जैसे फेस मास्क है जो कि अप्लाई होता है पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट 40 मिनट्स वेरी करता है, 30 से लेकर 50 मिनट्स का सेशन है। पेशेंट मशीन में सीधा लेटता है। दिस इज़ नॉन इन्वेजिव, किसी किस्म का पेन नहीं होता, पेशेंट जो है उसको किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं आता, और पेशेंट बासानी यहाँ से ट्रीटमेंट करा के घर चला जाता है। इज देयर एनी एज लिमिट कि कोई उस एज से ऊपर स्पेसिफिकली पेशेंट है? नहीं, कोई एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन एज वेल, बिकॉज इट हैज़ कैरिड नो साइड इफेक्ट। ये बहुत टारगेटेड रेडिएशन है, बहुत प्रीसाइज है, सिर्फ ट्यूमर को डिलीवर करती हैं, हेल्दी टिश्यू सेव रहता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो साइबर नाइफ है ये बॉडी के किस किस एरिया को मतलब ट्रीट कर सकती है? एक्सेलेंट क्वेश्चन। साइबर नाइफ से हम बॉडी के मोस्टली एरियाज़ को कवर कर रहे हैं इस टाइमिंग में, जिसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट 70 to 80% बल्क ब्रेन के एरियाज़ का है। ब्रेन के जो बिनाइन है या कैंसरस लीजन है उसके लिए है। सेकेंडली स्पाइन के ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो फिर बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता होगा यहाँ पे? यस, एक्सेलेंट क्वेश्चन। ये वाकई बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ऑल ओवर द ग्लोब। अगर आप यूके और अमेरिका में देखें तो एक जो सेशन है उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पेशेंट को कोई कॉस्ट नहीं आता, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ओवर हियर इन घुरकी। घुरकी में जितना ट्रीटमेंट थ्रू साइबर नाइफ हो रहा है इट इज़ 100% फ्री? इट्स 100% फ्री, और अभी तक हमने जो 550 प्लस पेशेंट्स किए हैं उनको हमने 100% फ्री ट्रीट किया है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर शहजाद जावेद साहब बैठे हुए हैं और इनसे अब गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब, आपकी एसोसिएशन कब से है घुरकी के साथ? मैं 2003-4 से इधर हूँ। स्पोर्ट्स इंजरी है, जो फुटबॉल खेलते हुए, वॉलीबॉल खेलते हुए, या बैडमिंटन वाले बहुत मरीज़ हैं हमारे पास। बहुत ज़्यादा ये कबड्डी के पेशेंट आते हैं, फिर रेसलर आते हैं। तो उनको अब ये पता है कि ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ हम जाते हैं। तो बल्कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि आप घुरकी जाएँ। तो बहुत सारे लेजेंड हैं जो इनके हमने किए हैं ऑपरेशन, और वो अब खेल रहे हैं दोबारा वापस। तो उनमें से जैसे वो मोस्टली क्रिकेटर्स भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हमने किया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड चैम्पियन है इनाम बट, रेसलर है। ओके। उसके दोनों ACL हमने किए। ACL होता है जो गोडे को आगे जाने से रोकता है। अच्छा। उसका टूटा हुआ था तो वो हमने यहाँ उसका ऑपरेट किया, और आफ्टर 3 months ऑफ दैट ही वन ऑस्ट्रेलियन रेसलिंग रेत पे जाके ना अच्छा वो जीता था। उसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। अभी जैसे आमिर अजीज़ साहब से गपशप हुई तो उन्होंने भी बताया कि भी इतने मैंने ट्रेंड कर दिए हैं जो यंग डॉक्टर्स हैं। अभी डॉक्टर प्रोफेसर नईम साहब से बात हुई, उन्होंने बताया। तो आपकी अभी तक की फिगर क्या है? अभी तक आपकी फील्ड के जो हैं कितने? जितने इधर से ट्रेंड होके गए हैं और जो अभी हो रहे हैं लड़के, ये आर्थोस्कोपी मैं करता था सिर्फ। ओके। अब मैं कम और मेरे स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं। अच्छा। और वो मेरे से आगे जा रहे हैं अब, बल्कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं।
सो आई स्टार्टेड फर्स्ट आर्थोस्कोपी, किसी को नहीं आती थी यहाँ पे। ठीक। आज 2003-4 में मैंने शुरू की यहाँ के। फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के, क्योंकि इधर तो इसका पीरियड ज़्यादा होता है सीखने का, फिर जितने मेरे रेजिडेंट हैं माशाल्लाह, एपीज़ हैं, एसोसिएट सब करते हैं। हर तीसरा पाकिस्तानी गुर्दों के उसमें मर्ज में है, ठीक है। एक बंदे ने डायलिसिस यूनिट बना दिया जो लाहौर का सबसे लेटेस्ट है, 22,000 लोगों का डायलिसिस हो चुका जी सो फार जी। सोचते थे, दुआ करते थे, एक बंदा आया कहता है जी मैं आपको मेहमान खाना बना दूंगा, 400 बंदा उसमें रहता है जी। अब बिस्तर, खाना उनको देता है गोरमे बेकर्स वाले, पीने का पानी इस इलाके में नहीं है। हमें आरओ प्लांट बाटा वालों ने 2 दिए, एक मैंने खुद लगवाया। फिर हमें पता लगा जी यहाँ दिल की बड़ी बीमारी है। एक बंदा आया जी, उसने कहा जी मैं अपने माँ बाप के नाम पे दिल का यूनिट बना दूंगा। लो जी, एंजियोग्राफी मशीन आ गई है, अगले महीने से स्टेंट एंजियोग्राफी शुरू हो जाएगी अल्लाह के फजल से, साल बाद बाईपास ऑपरेशंस भी शुरू हो जाएंगे। वेरी अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने आपका ना क्लिप देखा था आज से कुछ साल पहले, आपने फरमाया कि जी मैं ऑपरेशन, अगर दोनों नीज रिप्लेसमेंट हैं तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करता हूँ सर्जरी, एक को करता हूँ तो मोस्टली दूसरे पे मुझे जो है ना उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती और अल्लाह उस पर वैसे ही बरकत डाल देता है। यार देखें, अल्लाह के पास चली गई मेरी माँ, मुझे जी 44 साल हो गए हैं डॉक्टर बने हुए। अब तक अम्मा जी के फौत होने से पहले थे, मैं रोज़ उनसे ऑपरेशन डे पे दुआ करवा के आता था कि या अल्लाह, कि अम्मा जी दुआ करना अल्लाह आसानी पैदा कर दे। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता हूँ जी। हर चीज़ हम दाईं साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड से, एग्जैक्टली कि सुन्नत का भी हमें मिले, सवाब करने तो दोनों हैं, मैं राइट क्यों ना कर लूँ पहले। और यकीन करें जी, अल्लाह ने बड़ा सुरखरू किया इसमें। जब उसके लिए करते हैं ना जी, तो ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जिससे हम डर रहे होते हैं वो भी नहीं होती। डॉक्टर साहब लास्ट में आपके फ्यूचर प्लान? मेरा फ्यूचर प्लान ये जी कि मैंने, हजूर की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जो इंसानी जानों का इलाज करता है उस पे लाजिम है कि उस चीज़ में यदे तूला हासिल कर ले, मॉडरेशन में नहीं है। हजूर ने फरमाया कि बेस्ट बनो। तो मेरा जी कांस्टेंट यही है कि मेरा डिपार्टमेंट हर चीज़ में वर्ल्ड क्लास होता जाए। वेरी गुड, वेरी। अब स्पाइन में हम वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं, फुट एंड एंकल में हम वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज में, ट्रॉमा में, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में, अब हर जगह से हमें रिकग्निशन मिल रही है। तो मेरी ख्वाहिश ये है जी कि एक मेरा रोल मॉडल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, अदीब रिजवी साहब। बिल्कुल ठीक। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो मैं खुशकिस्मत होऊंगा, लेकिन बाद में होता रहे कि हर चीज़ मुफ्त हो। इस मुल्क में इतने ज़्यादा सखी लोग हैं जी, सिर्फ उनको ये एतमाद हो कि ये 2 नंबरी नहीं करेगा।